एवरीवन। मैम। गुड इवनिंग। तो एक काम करो, वन बाय वन सब अपनी अपनी स्टोरी नरेट कर दो। हाँ ठीक है मैम। मैम पहला मैं रीड करती हूँ। हाँ। अश्विन। Neha was living in Mumbai for her higher education in Vidyalaya hostel. She belonged to a very rich family and she was a bold girl as well as she liked to wear gold things. One day she went to her village for her elder brother's engagement ceremony. And because of her exam, she was late to catch the train, and her village was also very far. Slowly was getting dark. She was sitting on train. Slowly, passenger also decreases. That time, 3 4 people came to side of Neha. They were thieves. They come in front of Neha and start to tease them with her. All the passengers saw Neha, but nobody does help her. After some time, thieves pull the bag, but Neha boldly bites the thieves, and then she angrily did kidnapped the Sneha, and then all the golden things they steal, and then they left her the biggest forest. Neha has a reach nearby 10 o'clock, but afterwards, at the 10 o'clock, she did not reach home, so her father tried to search of her, and then she completed the police station, and police started searching of Neha. After 3 days, Neha was found in the jungle, and then police started to catch the thieves. The police caught the thieves and pushed and punished them. And then Neha's family celebrates engagement ceremony. मुझे लास्ट का पोर्शन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, लास्ट एक बार रिपीट करोगी क्या? हाँ मैम. Neha has reached home nearby 10 o'clock, but afterwards, at the 10 o'clock, she did not reach home, so her father tried to search for her. And then they completed in the police station, and the police started searching for Neha. After 3 days, Neha was found in the jungle, and the police started to search the thieves. Then police caught the thieves and punished them. And then Neha's family celebrated the engagement ceremony. ओके। तो इसमें तो किडनैपिंग वाला पोर्शन है ना, ये किडनैपिंग वाला एंगल था, हाईजैकिंग वाला नहीं था। मतलब मैम. वाज हाईजैकिंग। मैम हमने सबने किडनैपिंग का ही लिखा. क्या डिलीवर करा है कस्तूरी और अश्विनी, तुम सर अनामिका तुमने, मैंने कहा था हाईजैकिंग। कल का टॉपिक द हाईजैकिंग था ना। मतलब मैम मुझे नहीं समझा. हमें एक मतलब बार हाईजैकिंग, हम कल लिखेंगे. मतलब आज फिर से लिखते हैं. हाईजैकिंग वाला एंगल ऐड करना था इंस्टेड ऑफ किडनैपिंग, बट ठीक है, इट आल्सो वर्क, यू कैन चेंज द टाइटल फ्रॉम हाईजैकिंग टू किडनैपिंग। ओके, तो ओके. किडनैपिंग का एंगल है तो उसके हिसाब से अपना टाइटल सजेस्ट कर लो, जस्ट लाइक द किडनैपिंग ऑफ नेहा। द कैरेक्टर नेम वाज नेहा, राइट? सो यू कैन राइट हाँ किडनैपिंग हाँ. ऑफ नेहा। ठीक है, और यू कैन आल्सो गिव देम सम इंटरेस्टिंग नेम। अच्छा, नेक्स्ट कौन सुना रहा है अपनी स्टोरी? पुढची स्टोरी पण सांगते. संगीता मैम. ओके, संगीता। हाँ. On the railway station, there are a lot of passengers at the station. Some passengers are entering in the train, and some are coming out of the train. There are several porters carrying the language of passenger. There is a restaurant. There is a drinking water. Still, Anna is drinking water on the stall. Then she entered in the train, and some thieves enter in the train, and they try to kidnap two small girl. She start to cry. Then Anna see the thieves are kidnapping to the small girl. Then Anna called to police and arrestment to them and take in police station. बस इतना ही था? हेलो टीचर. हाँ हाँ। इतना ही था. अच्छा, अभी इतना ही लिखा है।
हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट ठीक है। बोलो हाँ बोलो, इसे कंप्लीट कर लो संगीता। हाँ, इतना ही है टीचर। ये यहीं पे स्टोरी खत्म हो गई है। हाँ हाँ, हो गई पूरी। अच्छा, थोड़े से करेक्शन की जरूरत है, मैं बता देती हूँ, वहां पे मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है, कॉपी में। हाँ ठीक है। हाँ ओके, हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ मैम, वासंती मैं पढ़ी हाँ, हूँ। Once upon a time, Arjun is going for office with his wife Nitya. They enter in the train and uh, going uh, going to then some kidnappers trying to kidnap Arjun and his wife Nitya. The Arjun bite to kidnappers and hand and shout loudly, "Please help me!" Then one man called to police inspector and police underestimated two kidnappers and एक मिनट take एक मिनट, in police जब वो station. उसने ही कॉल फॉर द पुलिसमैन, व्हाट द वर्ड वाज, अंडर एस्टिमेटेड या अंडर एस्टी, मेरे को समझ नहीं आया वो वाला जो वर्ड जो था। under underestimate अंडर एस्टिमेटेड है क्या है वो, मैं समझ नहीं हाँ पा रही हूँ। हाँ, अंडर, वही है मैम। हाँ, तो व्हाट ही अंडर एस्टिमेटेड द मैन। हाँ, When he called for the policeman, he underestimated the man. Who underestimated the man? ये थोड़ा अनक्लियर है यहाँ पे, थोड़ा क्लियर करो, कौन अंडर कर रहा है किसको? Who underestimated who? Arjun underestimated that particular policeman, or policeman underestimated the Arjun. पुलिस हाँ। The policeman underestimated the Arjun. Right? This is what you want to tell. अर्जुन को नहीं, अर्जुन हाँ. को नहीं, वो जो किडनैपर था ना उसको। अच्छा, the policeman underestimated the kidnapper. So mention this. हाँ, He at that particular moment, the policeman underestimated the kidnapper. ठीक है? अच्छा हाँ हाँ डू मेंशन दिस, क्योंकि पढ़ने वाले को थोड़ा अनक्लियर रहेगा उस केस में कि कौन किसकी बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू करो आगे। हाँ हाँ। And take in police station and give punishment for 1 month stay in police station. अच्छा, इतनी लिखी है मैम। so he actually arrested him, and what happened then? He put him in the jail, and then जेल 1 month, for a month. Okay. एक हफ्ते के लिए उसके एक महीने के लिए उसको हाँ जेल में एक डाल महीना एक दिया। हफ्ता, एक महीना एक हफ्ता एक डिसाइड तो महीना किया नहीं स्टोरी में। एक महीने के लिए ना, नहीं, फॉर अ मंथ हो जाएगा ना, फॉर अ मंथ। बट फॉर व्हाट ही केप्ट हिम इन द जेल? टू किडनैप अ लेडी? नहीं मेरा आदमी मतलब, था। आई मीन, मेरा पूछने का मतलब ये मैन था, है, उसने उसको मैन क्यों, था। पुलिस पुलिस वाले ने किडनैपर को क्यों रखा पुलिस स्टेशन में या जेल में? आवाज हाँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उसको पुलिस वाले ने क्यों रखा जेल में, रीजन तो दो। ही किडनैप उसने दैट लेडी, दैट्स व्हाई ही केप्ट देम इन द जेल अंडर आर्टिकल व्हाट? वो अर्जुन और नित्या जा रहे थे ना, तो उसने ना वो नित्या थी ना, उसकी बैग है ना वो चुरा रहा था, इसके लिए तो वो है अर्जुन है ना, तो वो उसको काटा, फिर उसने फोन किया तो इसको जेल में डाल दिया। अच्छा, ठीक है, तो उसको थोड़ा मैं भी चेक कर लूंगी कहाँ पे क्या करती है, क्योंकि कुछ चीज मेरे को बीच में मिस्टेक लगी, मतलब ऐसा मिसिंग लगा। अभी मुझे पढ़ के मैं एक बारी ढंग से हाँ गो थ्रू करके ना उसमें चेंजेस कर दूंगी, तो मैं हाईलाइट कर दूंगी, उसको ध्यान से देख लेना कहाँ पे क्या चेंजेस है। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट बच्चे हाँ पे मैम, चलते हैं, चलेगा। कौन है? हाँ रूपाली, बताओ। हाँ मैम। अच्छा, तो इसको स्टोरी, एक तो मैंने की सिखा दी तुम लोगों को, स्टोरी सुनाई कैसे जाती है, ठीक है। जब आप स्टोरी सुना रहे हो ना, नीड टू बी वेरी एंगेजिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो बोर हो गई स्टोरी लिख के, तुम भी सुन के बोर हो जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जैसे बोर हो गए हैं लिख लिखा के। ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो सिंपल सी स्टोरी सुनाने का भी तरीका होता है, जस्ट लाइक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल, हर नेम इज तारा। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, तुम्हारे एक्सप्रेशन तुम्हारे बोलने के तरीके से दिखने चाहिए। व्हेन यू आर ऑन ऑडियो, हाउ यू विल मेक द ऑडियो एंगेजिंग फॉर अदर्स, की वो सिर्फ सुने। कभी तुमने कभी वैसे ऐप्स एक्सप्लोर किए हैं जहाँ पे सिर्फ तुम्हें ऑडियो सुनाई देती है, लाइक तुम्हारा
एफएम ले लो, ठीक है, हाँ एफएम सुना है ना सबने। तो एफएम में क्या होता है, एफएम कभी तुम देख तो पाते नहीं हो बट सिर्फ सुनते हो, तो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग कैसे होता है? कभी नोटिस किया कि कैसे वो तुम्हें एंगेज करके रख रहा है, तुम्हें उसके अपने प्लेटफॉर्म पे खींच के रखा हुआ है? रीजन क्या हाँ। होता है? क्या होता है बताओ? वो बोलने के। ये बोलने का तरीका होता है बच्चों। अगर कोई एफएम रेडियो में जो रेडियो जॉकी जो काम कर रहा है वो इंटरेस्टिंगली तुमसे बात ना करे, उसके बात करने का तरीका बहुत बोरिंग हो, क्या तुम उसका रेडियो शो सुनोगे? बिल्कुल नहीं नहीं। सुनोगे, भाग जाओगे, बोलोगे हट बेकार चीज है, नहीं सुननी। ठीक है। हाँ। मगर अगर वो इंटरेस्टिंग होता है, वो तुम्हें खींच के रखता है अपने प्लेटफॉर्म पे और तुम वहां पे उसको एक्चुअली सुनते हो, 1 घंटे का शो पूरा सुनते हो, उसकी बातें सुनते हो, क्या बातें करे, क्योंकि उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो तुम्हें खींच लेता है अपनी तरफ, राइट? हाँ। Similarly, you can also try कि when your audio is only there and your video is not there, you keep your expressions in your voice that way कि सामने वाले को पता चले कि तुम्हारे बोलने से पता चल जाए कि तुम गुस्से में हो, शांत हो, या फिर बहुत एक्साइटेड हो, या तुम्हें हंसना आ रहा है। ठीक है। जब तुम्हारे एक्सप्रेशंस तुम्हारे वॉइस डिलीवर करने लगेगी, डेफिनेटली तुम्हारी एक स्टोरी बिल्डअप हो सकती है। ठीक है। बात हाँ। करने के तरीके से काफी चीजें एक्सप्लोर होती हैं। ठीक है। तो यू कैन शो देम जस्ट लाइक रूपाली ने लिखा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल, हर नेम इज तारा। एक फ्लो लेकर आओ बातों में। तो शी वाज तारा, शी वाज गोइंग टू अमेरिका फॉर हिज स्टडी, गो टू एयरपोर्ट एंड स्टैंड फॉर हिज फ्लाइट। देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है बहुत सारी रूपाली। हाँ स्टैंड मैम। फॉर हिज फ्लाइट, ये क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंड फॉर हिज फ्लाइट? शी वाज वेटिंग फॉर हर फ्लाइट, और शी was getting boarded for her flight, राइट? बोर्डिंग करते हैं ना, जब आप कहीं जाते हो, आप प्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, यू बोर्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। यू आर बोर्डिंग, हाँ सो शी मैम। वाज वेटिंग एट द एयरपोर्ट टू गेट बोर्ड द प्लेन। ठीक है। हाँ। And then some kidnappers come there, but how the kidnappers came there? You know, there's a tight security on airports, on any transport except the buses. There is a tight security on railway stations and in and on airport. Then how you will figure out that there is a kidnapper behind you? How you figure out that? ये भी तो plot सोचो ना। पढ़ने वाले का भी तो प्रेफरेंस रखो। मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला कि यार यहाँ तो, वहां तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, तो उसको कैसे पता किडनैपर आ गया? वो भी तो प्लॉट करो। हमने तो एक जस्ट इंस्टेंस लिख दिया कि भाई किडनैपर आ गया, ठीक है, किडनैपर है वहां पे, बट हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट टू अ पर्टिकुलर रीडर कि वहां पे किडनैपर आया कैसे? बिकॉज एयरपोर्ट पे तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ इनसाइड व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी पासपोर्ट और यू आर नॉट हैविंग एनी योर वीजा। Then how you are getting inside there, and how you know that he's a kidnapper? How you identify that, Rupali? क्या मैम? अच्छा, कोई भी पढ़ो इसकी, रूपाली ने जो लिखा है ये चीज कि when she while she was waiting for her flight to be boarded, she saw some kidnappers coming there and kidnap one girl. Is this instance is for real? Is this instance which you think you can accept that when you are listening to a particular story? Will you accept the fact, the writer which is writing it, who is writing it, I mean, will you accept this fact that some random person which you don't know about anything is a kidnapper and he came and kidnapped a girl right there in front of you from the airport? Will you accept this fact? बताओ बताओ। नहीं मैम। तो क्यों ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कि तुम इस फैक्ट को नहीं कंसिडरेशन में ले सकते? कभी सोचा भी करो कर ना कि क्यों, वाई, हाँ बताओ क्यों। मैम उधर बहुत ही मतलब सिक्योरिटी रहती है, चोर को अंदर मतलब आने ही नहीं हम्म, देंगे, क्योंकि उधर पासबुक और ये सब चेक करते हैं ना। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि अब सामने वाला अगर किडनैपर है भी, तो तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैपर है? और वो वहां एयरपोर्ट पे से किडनैपिंग कैसे कर रहा है? दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। आइदर ही विल फॉलो हर टिल द टाइम शी रीचेज हर रेसिडेंस, एंड देन वो उसके रेसिडेंस पे जाकर उसको वहां से किडनैप करे, घर के जस्ट बाहर से उसको किडनैप करे, जहां कोई लोग ना हो, जहां कोई सिक्योरिटी ना हो, देन इट इज पॉसिबल टू किडनैप अ पर्सन।
अदरवाइज भीड़ भड़क्के से आप लोगों को किडनैप कैसे कर सकते हो? लोग तो आप ही को पीट देंगे। ना। ये है कि नहीं? मैं अगर किसी को किडनैप करने जाऊं, वहां पे तुम्हारी पूरी टीम खड़ी हो, तो मुझे मारोगे नहीं? तुम तो मुझे ही हाँ। मारने लग जाओगे समझ रही हो। मगर अगर मैं कोई सुनसान जगह से उठाऊंगी, अगर मैं प्लॉट ऐसा करूंगी अपनी स्टोरी का कि मैंने सुनसान जगह से या कोई ऐसी जगह से उठाया जहां पे कोई था नहीं, देन वो मेरे लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा एज अ रीडर कि हाँ, कि दिस हैपेंड। तो रूपाली, तुम्हें भी क्या करने की जरूरत है? यू नीड टू प्लॉट अ सीन वेयर यू सॉ अ पर्टिकुलर पर्सन किडनैपिंग अ गर्ल फ्रॉम सम रैंडम प्लेस, नॉट फ्रॉम द प्लेस वेयर एवरीवन इज देयर। ओके, सो चेंज दैट प्लॉट। ठीक है, वहां पे चेंजेस करो, थोड़ा सोचो कि कैसे उसको किडनैप कर रहा है वो। प्लान अ सीन एंड देन पुट इट देयर। गॉट इट? यस ओके, मैम। देन इन मिनट, ये शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना रूपाली, तुमने मिनट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। डोंट अवॉइड राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन यू आर राइटिंग फॉर सम रीडर। ये याद रखो, तुम्हारी स्टोरी 100 लोग पढ़ने वाले हैं, तो 100 लोग के प्रेफरेंस में लिखो कि वो भी उस चीज को समझ पाए। हो सकता है कि तुम पढ़ पा रहे हो, वो ना पढ़ पाए। कोई बुढ़ा लोग पढ़ेगा तो वो थोड़ी ना मिनट को MIN से कंसिडर करेगा, उसके लिए तो वो बहुत अलग सी चीज हो जाएगी ना। हाँ। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन। हाँ मैम। थैंक यू मैम, सेम टू यू। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय। हाँ बाय मैम।